रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब उसी का यूज करेंगे 10th क्लास में, जिसमें पेपर 2 में फर्स्ट लेसन जो है हमारा सिमिलैरिटी, ये सिमिलैरिटी में हम लोग उसका यूज करेंगे और सिमिलैरिटी का फर्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। चलो तो देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। टू ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं। अब ये जो रेशियो फाइंड करना है उसके पहले हमें देखना पड़ेगा कि हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। वी नो जनरल फॉर्मूला, और जो हमें पता है हमेशा हम लोग एरिया फाइंड करने के लिए यूज करते हैं वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए हम लोगों ने लास्ट ईयर हेरॉन्स फॉर्मूला भी पढ़ा था, और उसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं। सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग यूज करें, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जस्ट टेक वन एग्जांपल। In this triangle we can consider BC as base and AB is height। तो यहां हमको मिलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equals to half into base, that is BC into AB। As per diagram we can say that the BC is base and AB is the height। Take another example। In this diagram, I will find the area of triangle ABC again. Here the base is BC. Base is BC and height is height, which is perpendicular to base, and height is AD. Therefore, area of triangle becomes half into BC into AD. Half into BC into AD. If I define the area of triangle PQR, triangle PQR का एरिया यदि फाइंड करना है तो यहां हम लोग यदि QR बेस लेते हैं तो QR के अपोजिट जो वर्टेक्स है उससे हाइट ड्रॉ करनी पड़ेगी। एंड अगेन यूज द फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। Now observe the diagram. Here two different triangles are taken. Two different triangles means it has first triangle has BC as base and second triangle has QR as a base. Here height is AB and here the height is PQ. Now try to take the ratio of areas of two triangles. Means area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to formula half into base into height, half into base into height. Area of triangle ABC, base is BC into height is AB. Here base is QR and height is PQ। अब यहां देख रहे हैं हम लोग न्यूमरेटर में आप और डिनोमिनेटर में आप कैंसिल हो जाएंगे और यहां आंसर मिलेगा हमें BC इंटू AB अपॉन QR इंटू PQ। BC into AB upon QR into PQ। BC is the base, QR is the base, AB is height of first triangle, PQ is the height of second triangle। तो यहां हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल, आई एम डिनोटिंग इट एज A1 अपॉन A2 is equals to base 1 means B1 into H1 is the height of first triangle upon QR. QR is the base of second triangle and
PQ is the height of second triangle. In this way we get a formula like this: A1 upon A2 is equals to product of B1 into H1 and the product of B2 into H2. यहाँ पे बेस और हाइट दोनों ट्राइंगल के डिफरेंट है, तो इस तरह से कंसेप्ट मिलेगा हमें A1 upon A2 is equals to B1 into H1. Means ratio of areas of two triangle. Ratio of areas of two triangle is equals to the product of base and height to the product of base and height of another triangle. चलो second example. Same area of triangle ABC upon area of triangle. अब इसमें दो ट्राइंगल है तो एरिया डिफरेंट डिफरेंट, हम लोग इसको फर्स्ट ट्राइंगल और इसको सेकंड ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, यहाँ ट्राइंगल चेंज कर लेते हैं और यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC. अगेन यूज फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. Half into base. In triangle ADB, the base is BD and height is AD. In second triangle ADC, base is DC, therefore half into base DC into height is AD. Height is AD. Now here half cancel, also AD cancel. We get BD upon DC. BD upon DC means BD is base of first triangle and the DC is base of second triangle, and here A1 is the area of first triangle upon A2 is the area of second triangle. We get a formula A1 upon A2 is equals to B1 upon B2. सिर्फ हमें बेसिस मिले क्योंकि both the triangle having इक्वल हाइट और कॉमन हाइट, दोनों की हाइट सेम है, इसलिए वो कैंसिल हो जाएंगे और हमें सिर्फ रेशियो मिलेगा बेसिस का. यहाँ पे भी वही कंसेप्ट यूज कर सकते हैं. यदि हम लोग PQR ट्राइंगल की बात करते हैं और उसका बेस यदि PQR लेते हैं तो हमें हाइट ड्रॉ करनी पड़ेगी P से. Now for this triangle also, if we take base as RS, then we have to draw height from opposite vertex और यही उसकी हाइट बनेगी. मान के चलते हैं इसको PA लिखते हैं. PA is height for first triangle and it is also height for second triangle. इसमें भी यही कंसेप्ट मिलेगा A1 upon A2 equals to B1 upon B2. Now look at the figure. There are two triangles, first and second. Try to write their ratio. Triangle ABD upon triangle BDC. Here again, for first triangle, base is BD, half into BD into height is AB. Right here AB upon half into for second triangle. Consider this as base. Base is BD and height is BC. Cancel, which is common. Half cancel, BD cancel. We get AB upon DC. AB upon DC. That is A1 upon A2, area of first triangle upon area of second triangle is equals to AB. AB means height of first triangle H1 and the DC is height of second triangle, that is H2. We get a formula A1 upon A2 is equals to H1 upon H2. यहाँ पे सिर्फ हाइट का रेशियो मिला है बिकॉज बेस इज कॉमन. दोनों ट्राइंगल का हम लोग बेस कॉमन ले रहे हैं. बेस कॉमन है तो सिर्फ हाइट का रेशियो, हाइट कॉमन है तो बेस का रेशियो. अब सेम यहाँ पे भी वैसे बेस कॉमन है दोनों ट्राइंगल का, ये फर्स्ट ट्राइंगल ये सेकेंड ट्राइंगल, बट ये LMN का बेस L से आएगा, हाइट L से आएगी और PMN की हाइट P से आएगी. मतलब ये H1 और H2 फिर से यहाँ ऐसा ही फॉर्मूला मिलेगा. Now in fourth figure, line L is parallel to RS.
लाइन एल इज पैरेलल टू आर एस। अब इनका हम लोग एरिया रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी आर एस अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल आर क्यू एस is equals to half into base. Base is RS, right here RS, here also RS. दोनों ट्राइंगल का बेस वही है। PRS का भी बेस RS है और QRS का भी बेस RS है, ये बेस है। अब हाइट, यदि हम लोगों ने RS बेस लिया है तो हाइट फर्स्ट ट्राइंगल की P से आएगी और सेकेंड ट्राइंगल की Q से आएगी। इसका नाम लिख देते हम लोग PA और इसका नाम है QB। तो हाइट हो गई इंटू PA अपॉन QB। जो कॉमन है उसको कैंसिल कर दे, हाफ हाफ कैंसिल, RS कैंसिल, वी गेट PA अपॉन QB। अब PA और QB हाइट से, बट आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे लाइन है किससे पैरेलल है, RS। अब कोई भी पैरेलल यदि चीजें ले लेते हैं हम लोग, इफ दिस इज पैरेलल टू दिस, अब इसके बीच में हम लोग कोई भी यदि डिस्टेंस मेजर करते हैं, यदि ये दोनों पैरेलल है तो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू डस्टर्स एनीवेयर वो कैसा रहेगा, सेम। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एवरीवेयर सेम रहेगा। सिमिलरली यहां आप लोग देख रहे होंगे कि लाइन L और लाइन RS ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, इसलिए यहाँ पे कितने भी हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ड्रॉ करते हैं तो वो सेम रहेंगे एंड वी गेट PA डिस्टेंस इज इक्वल टू QB। ये दोनों डिस्टेंस जो रहेंगे, ये दोनों डिस्टेंस सेम होने के कारण ये कैंसिल हो जाएंगे एंड वी गेट रेशियो 1/1। तो यहाँ आपको फॉर्मूला मिलेगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 1/1। इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट फॉर्मूला A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू A2। इस तरह से हम लोगों ने 4 फॉर्मूले देखी है। यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं डिफरेंट बेस एंड हाइट, डिफरेंट बेस एंड हाइट है तो A1 अपॉन A2 इस तरह से मिलेगा। यहाँ आप लोगों ने देखा है कि हाइट सेम है, सेम हाइट यदि सेम है तो रेशियो मिलेगा बेसिस का। या आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे बेस इज सेम यानी कॉमन बेस, तो आपको रेशियो मिलेगा H1 अपॉन H2। यहां आप लोग ऑब्जर्व किए इनका बेस सेम था और 2 पैरेलल के बीच में ये ट्राइंगल है, इसलिए इसके हाइट भी कैसी है, सेम। तो जब बेस और हाइट सेम है तो यहाँ पे मिलेगा आपको A1 इज इक्वल टू A2। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं प्रॉपर्टी के बारे में कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल हैविंग डिफरेंट बेस एंड हाइट्स is A1 upon A2 equals to B1 into H1 upon B2 into H2। सेकेंड इसमें B1 upon B2 है मतलब हाइट सेम है। थर्ड इसमें H1 upon H2 है मतलब इसका बेस सेम है। और यहाँ यदि बेस और हाइट यदि दोनों सेम है तो आपको फॉर्मूले मिलेंगे A1 is equals to A2। तो चलो फिर से रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। तो रिवाइज करें हम लोग, सिंपल सा कंसेप्ट है, डिफरेंट बेसिस एंड हाइट, तो B1 into H1 upon B2 into H2 दोनों डिफरेंट है। सेम हाइट सेम है, H सेम तो B1 upon B2। इसमें हैविंग कॉमन बेस सेम है इसलिए हाइट का रेशियो, हाइट सेम है बेस का रेशियो, बेस सेम है हाइट का रेशियो। और हैविंग सेम बेस एंड हाइट, अब दो ट्राइंगल की बेस और हाइट सेम रहेगी तो ऑब्वियस उनका एरिया तो इक्वली आने वाला है। दोनों का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, इसलिए यहाँ पे मिलता है A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू 1/1 और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट A1 इज इक्वल्स टू A2। सिंपल सा कंसेप्ट था, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम
आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।